Now, today we are going to begin with this understanding of mainly important organelles of the cells. जो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाने के पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा वीडियो मुझे मिला है यूट्यूब पे, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके अंदर आपको सेल क्या होती है एंड हाउ various components of these cells has been systematically arranged into the cell and how the cell has been constructed, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो आई request you that please concentrate on the video and try to understand the things. अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है then you can ask me and even you can see this video as many times as you want for the better understanding. So we'll begin with that. So here you can see that all the organisms are made up of the cells, or we can say that the cell is the basic unit of the life. So how the cell looks like, you can see here. Here we had shown the animal cell. In that you can see there are various organelles which are present into the cell. This one is the nucleus and it is consisting the genetic material in the form of the DNA. So we are seeing here the eukaryotic cell. अगर आप लोगों को यहाँ पे जो इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन बताया है वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने इसके लिए उसके नीचे सबटाइटल भी एनेबल कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन नोट इट ऑन योर नोटबुक एंड यू कैन आस्क मी लेटर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज जस्ट टू, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए इसीलिए ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड वी आर गोइंग टू discuss all the aspects of the cells which have been given into our syllabus. So ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो के अंदर का आवाज आ रहा है? साक्षी आवाज येतोय का व्हिडिओचा? हो सर येतोय। Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it.
enzymes that break down this cellular debris. The mitochondria is an organelle that is a powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-closed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. So, आप लोगों को अभी ध्यान में आया होगा कि हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं. So basically we are going to study the various organelles of the cells. सेल के अंदर एक हमारी जो सेल है उसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के. जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, इन सारे ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी में. उसी तरह से सेल भी अपने आप में एक अलग सी एक संस्था है जिसके अंदर अलग अलग जो सब डिपार्टमेंट्स है वो अपने काम करते रहते हैं. तो इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनेल्स है जो हम इस सिलेबस में देखने वाले हैं वो होंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सो ये हम वन बाय वन देखेंगे. उसके पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने बताई थी. सी हियर इज, ये जो है ये हमारी सेल है. इस तरीके की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है. कितनी होती है वो हम गिन भी नहीं सकते. हर एक सेल के अंदर एक तरीके का विशिष्ट ऐसा एक उसके अंदर का जो रचना है वो सबकी एक जैसी होती है. और हर एक ऑर्गन के लिए, हर एक लोकेशन के लिए उनकी स्पेसिफिक ऐसी सेल्स होती है जिनके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके इपिथेलियल सेल्स जो आपके सेल्स स्किन के ऊपर होते हैं उनकी जो रचना है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा एज कंपेयर टू दी ब्लड सेल्स, बिकॉज उनका लोकेशन अलग है, उनकी वर्किंग अलग होगी. बट द मैक्सिमम कंपार्टमेंटलाइजेशन और द मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल विल बी सेम. तो न्यूक्लियस जो है वो हर एक सेल में आपको दिखेगा. उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एंड ऑल, ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जो हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में पढ़े हैं.
Now, as a biotech student, you must know that the nucleus is the major important location for us to study, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। दिस वन, तो ये डीएनए के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब ये जो है न्यूक्लियस, ये भी एक प्रकार की छोटी सेल है, सेल के अंदर सेल। और जिस तरीके से इस सेल को फंक्शनलाइज होने के लिए विविध ऑर्गेनेल्स है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनेल्स है जिनकी मदद से अलग अलग प्रकार के काम होते हैं और ये सेल जो है ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। इसलिए उस न्यूक्लियस के अंदर भी उसका एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस जो है उस न्यूक्लियस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को रिजल्ट देने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको वो प्रोड्यूस करता है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है राइबोसोम्स। ओके, so the ribosomes into the nucleus are produced by the into the nucleus it has been produced by the nucleolus। अब हम ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनके बारे में हम देखने वाले हैं और जिस तरीके से अब ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इन जनरल यू कैन से दैट इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ये एग्जांपल अगर लेने की सोचे तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। अब उनके अंदर का जो सेल कॉम्पोजिशन है, ये जो सारे ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे उनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनमें उनमें डिफरेंस होता है बिकॉज उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हायर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होती है। दैट्स व्हाई they lacks these different types of organelles into the prokaryotic cell. So Jobs to perform. DNA dictate. अब ये चीज भी मैं आपको बता दूं, सी हियर, और ये जो फ्लूइड लाइक यहाँ पे आपको मोशन दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट दी साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और उसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको ये डीएनए देखने को मिलेगा। नाउ दिस डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड व्हेन द सेल गोज इनटू द डिवीजन स्टेट आइदर बाय माइटोसिस और मियोसिस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जिस वक्त ये सेल डिवीजन स्टेट में जाते हैं माइटोसिस या मियोसिस की, उस वक्त ये जो डीएनए है इसका कंडेंसेशन होता है, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म तैयार होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। So the single thread like DNA structure is called as a chromatin, and when this chromatin gets condensed then it will be called as a chromosome. This one, see here it is a condensation is going on and this is how the chromosome forms. And this is the nucleolus, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर से ये जो डीएनए की जो एक्टिविटीज है, क्रोमैटिन का क्रोमोसोम में बनना, उसके बाद में किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होके उसका एमआरएनए बनना, ये सारी चीजें जो है ये राइबोसोम्स के हेल्प से परफॉर्म की जाती है। सो दीज राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियोलस। So the whatever the white dots you are able to see here, these are nothing but the ribosomes, and these ribosomes are not, वो सिर्फ उस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए पर ही एक्ट नहीं करते हैं, तो कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में भी रिलीज किए जाते हैं, जिनकी वहां पे जरूरत होती है, वहां पे उनको वो यूज किए जाते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। बस बेसिकली आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि राइबोसोम्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। एंड द पोर्स यू आर सीइंग हियर, ये जो पोर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोपोर।
जो न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनके अंदर से राइबोसोम्स एमआरएनए रिलीज किए जाते हैं, राइबोसोम्स और एमआरएनए रिलीज किए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। They will have the important job of synthesizing or making proteins. अब ये जो राइबोसोम्स है, इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या असर होता है, उनकी क्या जरूरत है, ये हम स्पेसिफिकली जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में, उसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल में उनके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक आप ये ध्यान में रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स आते हैं वो कहां से आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस उसको प्रोड्यूस करता है। सो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर जो स्टैक्स लगे हुए हैं, दिस आर दी हॉलो स्टैक्स। ये जो है ये उसके अंदर में गैप है और वो जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जितने पार्ट के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने पार्ट के ऊपर राइबोसोम्स ये होते हैं प्रेजेंट, उतने पार्ट को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब यहां पे आप देख सकते हैं दिस वन, ये जो साइड है इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये जो साइड है इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम्स के अकुमुलेशन या डिपोजिशन की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो थोड़ा सा खुरदरा दिखता है, थोड़ा सा रफ दिखता है। इसलिए इतने पार्ट, जितने पार्ट जिनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स डिपॉजिट हुए हैं उतने पार्ट को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट के ऊपर राइबोसोम्स का डिपोजिशन नहीं हुआ है उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि आपके जो न्यूक्लियस के अंदर से एमआरएनए प्रोड्यूस करके बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज किया गया है। अब आपको ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पढ़नी पड़ेगी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इफ सी डीएनए इज ओके, सो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, डीएनए कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन डीएनए के जो शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं, उन जीन्स के अंदर प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने की एक जानकारी होती है, सीक्वेंस होती है। तो डीएनए की अंदर की जो जानकारी है उनको प्रोटीन्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये जो प्रोसेस है ये आपको हमेशा याद रखनी है, इसको कभी भी आपको भूलना नहीं है। यू विल गेट दी वेरियस क्वेश्चंस एंड ऑल द बेसिक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ ओनली। सो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कन्वर्जन होता है एमआरएनए के अंदर। डीएनए के सिर्फ उतने ही सेगमेंट का कन्वर्जन एमआरएनए के अंदर होगा जितने का प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है ना। द एंटायर जीनोम इज हैविंग लैक्स ऑफ जीन्स इनटू दैट। अब जिस किसी प्रोटीन की जरूरत है सिर्फ उसी प्रोटीन के एमआरएनए को प्रोड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डीएनए। एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ और द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो अब इस एमआरएनए का डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके उसकी अंदर की जो जानकारी थी उसको एमआरएनए के अंदर हम लोगों ने ट्रांसक्राइब कर ली, ट्रांसफॉर्म कर ली। इसके लिए हम एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती है। उन बुक्स को अगर हमें
बाहर ले जाने की परमिशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वो बुक वहीं पे पढ़ते हैं और उसके अंदर की जितनी भी जानकारी हमें जरूरी है। नाउ कंसिडर वन बुक, एक बुक को अगर हम डीएनए कहेंगे तो उसके अंदर जितने भी पेजेस है उनको हम कहेंगे जीन्स। अब आपको आपका जो टॉपिक है, सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल बायोलॉजी की किसी बुक में आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। अब सेल बायोलॉजी की जो बुक है उसको आप डीएनए समझिए। उस डीएनए के अंदर या उस बुक के अंदर जिस किसी पेज पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन टाइप की गई है, उस पेज को आप एक जीन समझिए। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपको वो बुक बाहर ले जाने के लिए अलाउड नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वो पन्ना खोलते हैं और उस पन्ने को खोल के आप एक नोटबुक के ऊपर उसको ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। उस इंफॉर्मेशन को उस बुक के अंदर से एक नोटबुक के ऊपर आपने ट्रांसफर कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि आपकी जो बुक है वो बुक एज इट इज रही, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पेज है वो भी वहां पे एज इट इज रहा, क्योंकि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन वहां से आपने ट्रांसफर की है एक पेज के ऊपर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आप वो पेज लेके बाहर जा सकते हैं, यू आर अलाउड टू टेक दैट पेज आउटसाइड द लाइब्रेरी। Now, outside the library means in case of cell biology, we can say that the mRNA can be transported from out from the nucleus to cytoplasm. ठीक है। अब उस mRNA मतलब उस पन्ने के ऊपर आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन वहां से कैरी किया था, अब उसको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में उसका आप ट्रांसलेशन करेंगे आपके हिसाब से। ठीक है ना। सो the transfer or the synthesis of protein from mRNA is called as the translation. ठीक है, सिंपल है। और फिर ट्रांसलेशन के बाद में आपको क्या मिलता है, प्रोटीन। ओके, अब आप समझ सकते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा डीएनए है उसके अंदर की जितनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए, उतनी ही इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब की जाती है एमआरएनए के फॉर्म में। एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए। दिस मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि वो डीएनए के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी है, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने वाले मैकेनिज्म है, उन तक वो मैसेज को वो ट्रांसफर करे। इसलिए उस मैसेंजर को बोलते हैं, उस आरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अब उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर की इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमारी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रोटीन बनाती है, और उन प्रोटीन्स को बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। एंड देन ये जो प्रोटीन्स है ये विविध प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, ये आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, ये आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, ये एंटीबायोटिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। These are nothing but the proteins only. So these proteins are actually involved into the various metabolic activities performed into the cell for the growth of an organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए उसके शरीर के अंदर, सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जरूरत है वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन प्रोटीन्स की मदद से परफॉर्म किया जाता है। सो इस तरीके से ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ की प्रोसेस है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां से डीएनए से आरएनए तक की जो प्रोसेस है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। और ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये होती है आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने देखा कि देयर आर वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड उन ऑर्गेनेल्स के अंदर ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, वही हम आज देखने वाले हैं।
सो यहां तक क्लियर है आप सबको? किसी को डाउट है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई इसके अंदर? एनीबडी? नो सर। अनुश्री, इज इट क्लियर? यस सर। दर्शना, प्रतीक्षा, साक्षी? यस सर। हो सर। Okay, so we will move further. वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो अब ये जो प्रोटीन्स बनाने का मैकेनिज्म है ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो राइबोसोम्स है जो एक्चुअली प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर से प्रोड्यूस होके उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, उसके अंदर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं और ये जो आपके राइबोसोम्स है ये उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इनटू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो यहां पे उन प्रोटीन्स का प्रोसिंथेसिस होता है, मॉडिफिकेशन होता है और उनको एक एक्टिवेटेड एंजाइम या प्रोटीन के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। सी हियर, सो दीज आर दी, ये जो यहाँ पे आपको छोटे छोटी गेंद की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आर नथिंग बट दी अमाइनो एसिड्स। और इस अमाइनो एसिड की चेन को कहते हैं पेप्टाइड चेन और ऐसी बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स एक साथ आके बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की मदद से बनता है एक प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपनी जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ये वेसिकल्स। ये वेसिकल्स उन प्रोटीन्स को यहां से कलेक्ट करेंगे और यहां से उनकी जरूरत जहां पर है वहां पे ले जाके उनको वो ड्रॉप करेंगे। और एक बार के आपके प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस हो गए कि वहां से उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी एपैरेटस। उसको गोल्जी एपैरेटस भी कहा जाता है, गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। तो वहां पे उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब वहां पे ट्रांसपोर्ट क्यों किया जाता है? तो उन प्रोटीन्स का जो मॉडिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब एक प्रकार का आपका रॉ मटेरियल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद में उसको फिनिशिंग के लिए गोल्गी एपैरेटस के पास भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहां पे गोल्गी एपैरेटस में उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन करके उसको एक हेल्दी एक्टिवेटेड प्रोटीन के फॉर्म में प्रोड्यूस करने के बाद में उसको क्वालिटी चेक होने के बाद में उसको आगे जहां पे उसकी जरूरत होगी वहां पे उसको भेज दिया जाता है। सी हियर, इस तरीके से। अब वहां पे अगर जरूरत है तो उन प्रोटीन्स को लिपिड मॉलिक्यूल अटैच्ड हो गए तब उन प्रोटीन्स को कहा जाएगा फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल को लिपिड मॉलिक्यूल आपका अगर अटैच होता है तो उसको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। और अगर उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये
लिपिड मॉलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कहां से आया? तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बताया था आपको, जिसके ऊपर राइबोसोम्स डिपॉजिट नहीं होते हैं, ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या फैट्स प्रोड्यूस करने का काम जो है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। क्लियर है? और उन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोड्यूस करके हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रेटिकुलम लिपिड और फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए जाता है गोल्गी एपैरेटस के पास, यहाँ पे जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, सो दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हो जाएगा और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, और अगर जरूरत है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो लिपिड या कार्बोहाइड्रेट या फैट्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए गए उनको वो वहां पे अटैच करके मॉडिफाई करेगा। So ये हम यहाँ there is another molecule or organelle present into the cell, that is the lysosomes। अब ये lysosomes क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो आपके प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम के प्रोड्यूस हुए कुछ जो ऐसी चीजें बन जाती है जिनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, वो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया या डिग्रेडेड मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, उनको वो एनगल्फ करके डिग्रेड करने का काम करते हैं, साफ सफाई करने का काम करते हैं। उनका नाम है लाइसोसोम्स। सी हियर, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू ईट दी। अब अगर उसने ये जो प्रोसेस किया उस पार्टिकल को अंदर लेने का, उसको कहते हैं एनगल्फिंग। उसको हिंदी में हम कहते हैं निगलना, मराठी मध्ये आपण त्याला म्हणतो गळणे। So this is how the particles are going to be engulfed into the lysosomes, and then the lysosomes will degrade that molecule। अब वो डिग्रेड कैसे होता है? वो होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहां से आए? तो जो हम लोगों ने प्रोसेस देखा, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, एमआरएनए प्रोड्यूस करके हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस एमआरएनए का प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में उसका मॉडिफिकेशन होगा और वो एंजाइम बनेगा। एंजाइम बनने के बाद में हो जाएगा लाइसोसोम में, लाइसोसोम में उसकी जो काम है वो करेगा। इसी प्रकार के बहुत सारे विविध एक्टिविटीज हमारी सेल के अंदर होते रहते हैं। उन सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए हमें एक सेल और वो एंजाइम, और उस एंजाइम का प्रोडक्शन हम लोगों ने वहां पे देखा। एंजाइम्स आर नथिंग बट दी प्रोटीन। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज नथिंग बट दी पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपके सेल की एमएसईबी है। ये आपके सेल को इलेक्ट्रिसिटी के जिस तरह से हमारे यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह से ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। सो बेसिकली आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इट इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये हमारे सेल के अंदर जिस किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करती है। और हमारी सेल के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में जरूरी होती है। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम क्या है? एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना। अब आपकी सेल किस प्रकार की है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सारी माइटोकॉन्ड्रियाज आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर किसी विशिष्ट रीजन में या ऑर्गेनेल में आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उस ऑर्गन के सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है। See here, the dots you can able to see here are nothing but the ATP molecules which are providing energy to the various
mechanisms, and the process of the generation of ATP molecules are called as a cellular respiration. Cells. Meanwhile, cytoskeleton और जो हम लोगों ने सबसे पहले इस कोर्स में पढ़ा था, दैट इज द साइटोस्केलेटन। ये जो साइटोस्केलेटन है ये हमारी सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम करता है और उसी के साथ में वो ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है उन मॉलिक्यूल्स का। ये प्लांट का है, हम बाद में देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लंग्स के अंदर जब हमारा कोई कफ या कुछ जमा हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गले में से कफ ऊपर की ओर आता है। वो कैसे आता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सीलिया प्रेजेंट ऑन टू दी सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है। ये सीलिया जो है एक रिदमिक स्वीपिंग मूवमेंट करती है और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट दी कफ, और इस कफ को वो ऊपर की ओर ढकेलती है। तो इस तरीके से ये सीलिया हमारी मदद करती है। ये सीलिया आपको हर प्रकार की सेल में नहीं देखने को मिलेगी, ये बस आपको सिर्फ कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी लंग सेल्स। ये लेक्चर अगर खत्म हो जाता है तो आपको रिज्वाइन करना है।